Hare Krishna. Chapter 15 of Srimad Bhagavad Gita as it is, the Yoga of the Supreme Person. Text 1. Shri Bhagwan Uvacha Urdhvamulam Adashakam Ashwatham Prahur Avyayam Chandasi Yasya Parnani Yastam Veda Savedaved. English translation. The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. Hindi translation. भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को गाता है। Text 2. अधश्च ऊर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. English translation. The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the object of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive action of human society. Hindi translation. इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रियाविष्य है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। Text 3 to 4. नारूपमस्येह तथा उपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्ता प्रवर्ति प्रसता पुराणी. English translation. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and then surrender to that Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial. Hindi translation, Greshika. इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। Text 5. निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता
सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्. English translation. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Hindi translation. जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं. Text 6. न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. English translation. That supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Hindi translation. वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से. जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते. Text 7. ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. English translation. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Hindi translation. इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। Text 8. शरीरम यत्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् निवासयात्. English translation. The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another. As the air carries aromas, thus he takes one kind of body and again quits it to take another. Hindi translation. इस संसार में जीव अपनी ध्यात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। Text 9. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. English translation. The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. Hindi translation. इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रियां विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। Text 10. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. English translation.
The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all these. Hindi translation. मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। Text 11. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ते चेतसा. English translation. The enduring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose mind are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. Hindi translation. आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रत्ययनशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन में विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रत्यंत करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। Text 12. यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यत्र चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्. English translation. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the sun and the splendor of fire are also from me. Splendor of moon. Hindi translation. सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। Text 13. गामा विषया च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका. English translation. I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. Hindi translation. मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। Text 14. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. English translation. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of food stuff. Hindi translation. मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैष्णवार हूँ और मैं व्यास प्राण वायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास. टेक्स्ट 50. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमापोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम. English translation. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas,
I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedant, and I am the knower of the Vedas. Hindi translation. मैं प्रत्येक जीव के हृदय में असीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलनकर्ता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। Text 16. दाविमो पुरुषौ लोके क्षरक्ष अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुतस्तो अक्षरा उच्यते. English translation. There are two classes of beings, the fallible and infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Hindi translation. जीव दो प्रकार है, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। Yes. Text 70. उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारिता यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वरा. English translation. Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. Hindi translation. इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो शाश्वत अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। Text 80. यस्माक्षरमतीतो हम अक्षराद् अपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा. English translation. Because I am transcendental beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the Supreme Person. Hindi translation. चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। Text 19. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारता. English translation. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. Hindi translation, very important श्लोक. जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। Text 20. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. English translation. This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. Hindi translation. हे जनार्दन, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हे अनग. अनग में जो पाप नहीं करते. Yes. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। काशी की जय। श्री 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 कार्तिक मास की जय। ऊर्जा व्रत की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।